پیپلز پارٹی غربت کے خاتمے معاشی استحکام کے لیے کوشاں۔ ہر یونین کمیٹی میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا دفتر بنے گا۔ غریب نادار مستحق افراد کو مالی امداد دی جائے گی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا بڑا اعلان۔ مستحق خواتین کی نادرا کے ذریعے ڈائنامک رجسٹری کا افتتاح کر دیا۔ کہا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے ملک کو مستحکم کر رہے ہیں۔ اس انقلابی پروگرام کو ختم کرنے والے ناکام رہے۔ پیپلز پارٹی کا کسی سیاسی جماعت سے مقابلہ نہیں، ہمارا مقابلہ جہالت، غربت اور افلاس سے ہے۔ توانائی کا بحران، کراچی انتظامیہ کا بچت پروگرام۔ مارکیٹیں اور شاپنگ مالز رات 8:30 بجے بند کرنے کا حکم۔ شادی ہال اور ریسٹورنٹس رات 10 بجے بند کروانے کی ہدایت۔ تمام اضلاع کے ڈپٹی کمشنر سے عمل درآمد رپورٹ طلب۔ کمشنر دفتر سے منسوب لیٹر منظر عام پر آ گیا۔ کمشنر آفس نے لیٹر جاری کرنے کی تردید کر دی۔ مارکیٹیں جب دیکھیں کوئی آرڈر آتا ہے تو اس کے اندر سب سے زیادہ جو پرابلمز آتی ہیں کہ گورنمنٹ کی طرف سے تو آرڈر آ جاتے ہیں لیکن اس کی جو امپلیمنٹ کر رہے ہوتے ہیں ان کی چاندنی ہو جاتی ہے۔ تاجروں نے مارکیٹیں بند کرنے کا فیصلہ مسترد کر دیا۔ اوقات کار پر تاجروں سے مشاورت نہ کرنے کا شکوہ۔ چیئرمین آل سندھ لیبریکینٹس ڈیلر ایسوسی ایشن چودھری عبدالغفور کا کہنا تھا کہ انتظامیہ تاجروں پر اپنے فیصلے مسلط نہیں کر سکتی۔ صدر ہالز ایسوسی ایشن رانا رئیس نے فیصلہ غیر سنجیدہ قرار دیا۔ دکاندار بھی کمشنر کراچی کے فیصلے سے ناخوش نظر آئے۔ آل پاکستان ٹمبر ٹریڈرز ایسوسی ایشن بھی فیصلے سے نالا۔ آل کراچی ریسٹورنٹس ایسوسی ایشن نے فیصلہ مزدور دشمنی قرار دے دیا۔ صدر آل انجمن تاجران سندھ کے جاوید قریشی نے کہا کہ حکومت تاجر برادری پر فیصلے مسلط نہ کرے۔ یہ جو 8:30 بجے آئے، دیکھیں تاجروں کے ساتھ ایک میٹنگ ہوئی تھی سندھ گورنمنٹ کی کمشنر ہاؤس میں۔ اس میں واضح طور پہ ایک پلان ہوا تھا کہ بھئی 9 بجے تاجر بھی مان گئے تھے مارکیٹیں بند کرنے کا، توانائی کنٹرول کرنے کا، تمام شاپنگ مال، تمام مارکیٹیں 9 بجے بند کر دیں گے۔ پھر یہ 8:30 بجے کا نکالا ہے تو یہ ایک ایشو کریٹ کرا دیا گیا۔ سب تاجر توانائی بچت پروگرام پر عمل درآمد کریں۔ چیئرمین ہول سیل گروسرز ایسوسی ایشن کی اپیل۔ عبدالرؤف ابراہیم کہتے ہیں کہ ملک شدید معاشی بحران میں ہے، توانائی کی بچت انتہائی ضروری ہے، فیصلے پر عمل درآمد بھی کرانا ہوگا۔ کراچی انتظامیہ کو فیصلے پر عمل درآمد کے لیے باہر نکلنا ہوگا۔ اعلان ہو گیا، مجھے یہ کوئی نہیں بتا رہا کہ یہ عمل درآمد کب سے ہوگا۔ اب یہ صرف نوٹیفیکیشن سے کام نہیں چلے گا، ملک کے حالات بہت خراب ہیں، ہم انرجی کرائسس میں ابھی ہیں اور آئندہ کے دنوں میں انرجی کرائسس بڑھے گا کیونکہ گرمی آنے والی ہیں۔ خدا را اس ملک پہ رحم کریں۔ کاٹی نے میثاق معیشت کو معاشی مسائل کا حل قرار دے دیا۔ صدر کاٹی فراز الرحمان کہتے ہیں کہ تاجروں کے ساتھ چارٹر آف معیشت پر بات کی جائے۔ مہنگائی نے چٹخارے دار کھانے کو پھیکا کر دیا۔ کمپنیوں اور کھلے مسالے کی قیمتیں بڑھ گئیں۔ 1 کلو ہلدی 3 دن میں 80 روپے مہنگی 480 روپے پر پہنچ گئی۔ پیسی مرچیں 640 روپے سے بڑھ کر 800 روپے کی ہو گئیں۔ کمپنیوں کے مسالے کا 60 گرام کا پیکٹ 10 روپے مہنگا 100 روپے تک جا پہنچا۔ 100 گرام کا پیکٹ 20 روپے اضافے سے 170 روپے کا ہو گیا۔ ٹی ایل پی کی 27 فروری کو مہنگائی کے خلاف ہڑتال۔ کراچی کی تاجر برادری 2 دھڑوں میں تقسیم۔ اولڈ سٹی تاجر ہڑتال کے حامی، آل کراچی تاجر اتحاد کی مخالفت۔ تاجر رہنما عتیق میر کا کاروبار جاری رکھنے کا اعلان۔ کہا کہ کراچی مشکل سے ہڑتالوں کے نرغے سے باہر آیا، ہم کسی قسم کا رسک نہیں لے سکتے۔ سٹی 21 کی خبر پر چیف سیکرٹری سندھ سہیل راجپوت نے سخت نوٹس لے لیا۔ سندھ سیکریٹریٹ ناکارہ گاڑیوں کا کباڑ خانہ کس طرح بن گیا؟ سیکرٹری جنرل ایڈمنسٹریشن و کوارڈینیشن پر برہم۔ چھٹی کے روز تمام ناکارہ گاڑیوں کو ٹھکانے لگانے پر ہدایت۔ سرکاری ناکارہ گاڑیوں کے لیے کلفٹن میں ڈی ایم سی ایسٹ کا پارک مختص۔ سندھ کی سیاسی جماعتوں، دانشوروں، ماہرین کا مردم شماری مؤخر کرنے کا مطالبہ۔ سیاسی خصوصی کانفرنس میں سینیٹر نثار کھوڑو، قادر مکسی، ایاز پلیجو،
शाह मोहम्मद शाह और दीगर की शिरकत। सियासी रहनुमाओं ने 7वीं मरदमशुमारी को मुतनाज़ करार दे दिया। कहा, हर जगह इंटरनेट की सहूलत ना होने से कई खदशात ने जन्म लिया। कैस्पेट कराची की सालाना ग्रेजुएशन तकरीब। फारिगुल तहसील तलबा और तालिबात को डिग्रियां तफवीज़ की गई। बैचलर्स और मास्टर्स प्रोग्राम के तलबा ने अपनी असनाद वसूल की। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। दीनी जामियात के सालाना इम्तिहानात जारी। जामिया बनूरिया आलमिया में तालीमी बोर्ड मजमाउल उलूम के तहत इम्तिहानात। जामिया बनूरिया में 73 ममालिक के 5000 से ज़ायद तलबा ज़ेर तालीम। मजमाउल उलूम बोर्ड के तहत इम्तिहानात में शोबाए दर्स निज़ामी के तलबा शामिल। निगरान आला इम्तिहानात मौलाना इफ्तिखार कहते हैं कि जामिया बनूरिया में चारों मसालिक की तालीम दी जाती है। इम्तिहानात का सिलसिला 6 रोज़ तक जारी रहेगा। गैस की बंदिश जारी। शहरियों पर परेशानी तारी। शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में गैस की तरसील तात्तुल का शिकार। शीरी जिना कॉलोनी, शाह लतीफ टाउन, नॉर्थ कराची और नॉर्थ नाज़िमाबाद में गैस गायब। गडाब, तीसर टाउन और दीगर इलाकों में भी गैस बंदिश मामूल। शहरी कहते हैं कि सिलेंडर के इस्तेमाल से अखराजात बढ़ गए हैं। जिना अस्पताल कराची में टेलीफोन एक्सचेंज तबाही के दहाने पर। जिना अस्पताल में 500 से ज्यादा एक्सटेंशन खत्म होकर 15 से 20 रह गए। मुलाजमीन कहते हैं कि एक्सटेंशन बर वक्त मरम्मत ना होने के बायस तबाह हुए। डॉक्टर्स के मुताबिक एक्सटेंशन खराबी से कबल 28 वार्ड्स का आपस में राबता था। मंगोपीर में वाटर बोर्ड की कार्रवाई। गैर कानूनी हाइड्रेंट्स मस्मार कर दिए गए। पानी 66 इंच की लाइन से चोरी करके फरोख्त किया जा रहा था। वाक़े का मुकदमा थाना मंगोपीर में दर्ज कर लिया गया। कचरा उठाने वाली गैर मुल्की कंपनी ने लेबर कवानीन नजरअंदाज कर दिए। मुलाजमीन से बगैर हिफाजती इक़दामात के काम लिया जाने लगा। अहम गुजरगाहों पर बगैर सेफ्टी के मुलाजमीन सफाई के अमल में मसरूफ। वर्कर्स का जान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात का मुतालबा। कराची पुलिस ऑफिस हमले की तहकीकात जारी। ज़ेर हिरासत 8 अफराद को तफ्तीश के बाद रिहा कर दिया गया। हमले में इस्तेमाल गाड़ी के आखिरी खरीदार का सुराग ताहाल नहीं लग सका। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक गाड़ी की 12 बार खरीदो फरोख्त की गई। गवर्नर सिंध की DIG सिक्योरिटी से मुलाकात। PSL के सिक्योरिटी इक़दामात पर तबादला ख्याल। गवर्नर सिंध ने KPO हमले में फोर्सेस के फौरी एक्शन को सराहा। कामरान टिसोरी ने मकसूद अहमद को मेडल और शील्ड से नवाजा। रमजान से कबल ही कराची गदागरों का मस्कन बन गया। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से मांगने वाले कराची पहुंचने लगे। BRT, ग्रीन लाइन और ऑरेंज लाइन के पुलों के नीचे गदागरों के डेरे। कुरंगी नदी पर भी गदागरों की खैमा बस्तियां कायम। महंगाई से सताए शहरी गदागरों से भी परेशान। मार्केट हो या होटल, हर तरफ गदागर ही गदागर है। शहरियों का शिकवा। पुलिस गदागरों के खिलाफ क्रैकडाउन में नाकाम। पुलिस हुकाम ने सारा मलबा शहरियों पर डाल दिया। पुलिस हुकाम के मुताबिक गदागरों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं तो आवाम बीच में आ जाते हैं। शहरियों का मुतालबा होता है कि भिखारियों के बजाय चोर और डाकुओं को पकड़ें। हुकाम की शहरियों से गदागरों को पैसे ना देने की अपील। ग्रेड 18 से 21 के अफसरान की तरक्कियों का मामला इल्तवा का शिकार। अफसरान की तरक्कियों में अफसरान ही आड़े आ गए। मुकम्मल वर्किंग पेपर फराहम न करने की वजह से तरक्कियों का अमल खटाई में पड़ गया। महकमे सर्विसेज ने तमाम महकमों को खत भेज दिया। खत में मलबा मुतल्लिका महकमों के सेक्रेटरीज पर डाल दिया गया। सिलेक्शन बोर्ड इजलास से 2 हफ्ते कबल मुकम्मल वर्किंग पेपर तलब कर लिए। NGO को दिया गया रेलवे स्कूल तबाही के दहाने पर। तालीमी मेयार सियासत की भेंट चढ़ गया। स्कूल का फर्नीचर, क्लासरूम, खेल का मैदान सब तबाह। इंसाफ वेलफेयर की जानिब से मरम्मती काम ना करवाने से सूरत हाल खराब। नायब सदर रेलवे यूनियन वर्कर्स लाइन ने NGO का कच्चा चट्ठा खोल दिया। जावेद आमान ने कहा कि तहरीक इंसाफ की मुदाखलत से स्कूल बर्बाद हो गया। स्कूल का फंड और सामान इंसाफ हाउस में इस्तेमाल हो रहा है।
पीटीआई का एक और यू टर्न, तहरीके इंसाफ एमपीएज इस्तीफे देकर पीछे हटने लगे। इस्तीफों की मंजूरी के खिलाफ हाई कोर्ट में दरख्वास्त दे दी। स्पीकर ने मंजूरी का प्रोसेस कानून के मुताबिक नहीं किया। अरकान से इस्तीफों की तस्दीक भी नहीं की गई। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़। पसंद की शादी करने वाले जोड़े को हिरासा करने का केस। मोहसिन से मर्जी से शादी की, वालिदैन ने अगवा का झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया। मुतासरा लड़की का बयान, कम उम्र लड़कियों से शादी की आड़ में ह्यूमन ट्रैफिकिंग का सिलसिला भी जारी है। वकीला को केस और फीस देने से कबल केस के हकायक का जायजा भी लेना चाहिए। जस्टिस उमर सयाल के रिबात, दरख्वास्त पर 17 मार्च के लिए पुलिस से जवाब तलब। हफ्ते के दौरान रुपए की कदर में बेहतरी का सफर जारी रहा। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर ₹2.83 सस्ता, 262 रुपए 82 पैसे से कम होकर 259 रुपए 99 पैसे तक गिर गया। एक हफ्ते में रुपए की कदर में 2.82% बेहतरी। रुपए के रिपोर्ट के मुताबिक बरामदात की मद में डॉलर मौसूल होने से रुपए पर दबाव कम हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 268 रुपए पर मुस्तहकम रहा। यूरो ₹1.5 सस्ता होकर 280 रुपए का हो गया। बरतानवी पाउंड 2 रुपए इजाफे से 318 रुपए तक बढ़ा। अमाराती दिरहम 1 रुपए 70 पैसे इजाफे से 75 रुपए 20 पैसे का हो गया। डॉलर के साथ सोने की कीमतों में भी कमी, 1000 रुपए सस्ता होकर सोना 1,94,100 रुपए तोला हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 1,66,400 रुपए और आलमी मार्केट में सोना $8 फी औंस से सस्ता, 1 तोला चांदी 2,080 रुपए की हो गई। एक हफ्ते में स्टॉक मार्केट में मनफी रुझान रहा। 100 इंडेक्स में 410 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई। 100 इंडेक्स 1% कमी से 40,707 की सतह पर बंद हुआ। एक हफ्ते में 26 अरब रुपए के 69 करोड़ शेयर्स का कारोबार हुआ। जनवरी में करंट अकाउंट खसारा 21 माह की कम सतह 24.2 करोड़ डॉलर रह गया। शेयर्स की कीमत कम होने से मार्केट कैपिटलाइजेशन में 109 अरब रुपए कमी। मार्केट कैपिटलाइजेशन घटकर 6,320 अरब रुपए रह गई। पीआईबी में वाक़े केएमसी ग्राउंड में खेलों का मेला खत्म हो गया। 20 से ज़ायद स्कूल्स के तलबा और तालिबात की इवेंट में शिरकत। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी की खुसूसी शिरकत। कामरान टेसोरी ने बच्चों को रमज़ान में अफ्तारी की दावत भी दे दी। पाकिस्तान सुपर लीग के सुपर मुकाबले जारी। इवेंट का 14वां मैच आज नेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान्स की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। शाहीन पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज कैंपस 3 में हुआ फन गाला। बच्चे बड़े सभी ने खूब एंजॉय किया। खाना पीना डांस और बहुत कुछ। प्रिंसिपल ने हम निसाबी सरगर्मियों को भी बहुत जरूरी करार दिया। कराची में बोहरा फूड फेस्टिवल का मेला सज गया। चटपटे मजेदार खाने हाजरीन की तवज्जो का मरकज। बोहरा कम्युनिटी की खास रिवायती डिश थाल की धूम मच गई। बोहरा फूड फेस्टिवल में फैमिलीज की बड़ी तादाद की शिरकत। मौसम बहार की आमद। सीवीओ अब्दुल करीम पार्क में सालाना फ्लावर शो। फैमिलीज की बड़ी तादाद दिलकश फूलों के नज़ारों से लुत्फानंदोज। और बेज़बानों से मोहब्बत का इजहार। कराची यूनिवर्सिटी में पेट शो का इनेकाद। शो में मुख्तलिफ नायाब किस्म के परिंदे और जानवर शामिल। जानवरों की खुराक, वैक्सीनेशन और तिबी इमदाद की सहूलत। नायाब किस्म के परिंदों और जानवरों को देखकर शुरका का इजहार मसरत।